سال رواں 2020-21 عیسوی کے تعلیمی سال میں SAQ اینگلو اردو ہائی اسکول میں پڑھنے والے دہم جماعت یعنی 10ویں جماعت میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محکمہ تعلیمات عامہ کی جانب سے تمام اساتذہ اکرام اور طلباء و طالبات کو ورک فار ہوم یعنی گھر پر کام کا پروگرام دیا گیا تھا۔ اس کے تعلق میں آج آپ سب کے سامنے میں کووڈ-19 یعنی کرونا وبائی مہاماری وبائی بیماری کے متعلق سے اور سماجی سائنس کے چند بنیادی اصولوں چند بنیادی معلومات کے متعلق سے مخاطب ہوں گا۔ تو دہم جماعت کے پیارے طلباء و طالبات، کووڈ-19 بیماری یعنی ایک ایسی بیماری ہے جس کے وائرس جس کے سمٹم ہمارے علاقے ہی میں نہیں، ہماری ریاست ہی میں نہیں، دنیا کے تمام ممالک کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس بیماری کے وائرس دوائیوں کی کھوج میں بڑے بڑے سائنسدان اور ڈاکٹرز جٹے ہوئے ہیں۔ ابھی تک مکمل طور پر اس کے وائرس نہیں ملے ہیں۔ اس کے ویکسین، اس بیماری کی دوائیاں ویکسین ابھی تک فراہم نہیں ہوئے ہیں۔ اس کرونا بیماری سے بچنے کے لیے خود ہم اپنے آپ پر احتیاط برتنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے ہم اپنے گھر پر ہی رہ کر احتیاط برتنا پڑے گا اور ضروریات کی چیزوں کے لیے خاص کر ہماری بنیادی ضروریات راشن ہوں یا دوائیاں ہوں یا ضروری چیزوں کو لانے کے لیے ہی ہم گھر کے باہر جانا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چہرے پر ہمیشہ فیس ماسک کو استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ناک سے اور ہمارے زبان سے یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل نہ ہو کر ہم اس بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے پیارے طلباء و طالبات، ہمیشہ ہم یہ فیس ماسک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا، جس سے وائرس اور سمٹم رہیں گے تو وہ ہمارے جسم کے اندر داخل نہیں جا پاتے اور وہیں پر وہ وائرس ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہمیشہ میں سینیٹائزر کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سردی زکام آنے پر یا چھینک آنے پر سفید رومال کا استعمال کرنا ضروری ہوگا، اور ہمیشہ ہمارے آنکھ، ناک، کان وغیرہ کو اپنی انگلیوں سے مس یا نہیں ملنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم یہ سفید رومال یا سفید کرچیف یا دستی کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے بچوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ 2-2.5 گھنٹوں میں ایک بار ہم ہینڈ واش سے یا صابن سے ہمارے ہاتھ کو صاف کرنا پڑے گا، اور صابن کو ہمارے ہاتھ سے دھونا پڑے گا، کیونکہ جو وائرس ہو، وہ سمٹم ہو، وہ دھونے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوشل ڈسٹنس یعنی کسی سے مخاطب یا ملاقات کے دوران ہمیشہ ہم 3 فیٹ کی دوری قائم کرنا پڑے گا پیارے بچوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ مارکیٹ، منڈیوں اور بازار میں اشیاء خریدتے ہیں تو لوگوں کے ہجوم میں شریک نہ ہونا ہوگا اور ہمیشہ سوشل ڈسٹنس قائم کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ شادی بیاہ ہو
या त्यौहार वगैरह में सरकारी उसूलों, सरकारी कायदे, सरकारी क़वानीन को अपनाकर सोशल डिस्टेंस कायम करना होगा। और अगर हम इस तरह करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी का ख़त्म होता है, और इस तरह से हम अपने आप पर एहतियात बरतेंगे तो ये कोविड-19, ये कोरोना वबाई का ख़ात्मा हम कर सकते हैं और इसे हमें कम भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने ये सोशल साइंस के बुनियादी चंद मालूमात से मुखातिब हूँगा। तो प्यारे बच्चों, ख़ास कर को हश्तुम और निहम और दहम जमात के तलबा और तालिबात को मैं हमेशा से बताया हूँ, ये हमारी ब्रिज कोर्स में हो या परिहार बोधने में हो या बुनियादी मालूमात में हो, मैं हमेशा बच्चों से मुखातिब हुआ हूँ। वो उसमें क्या है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारी निहम या दहम या हश्तुम यानी 8वीं 9वीं 10वीं जमात में कुल हमारे 8 मज़ामिन होंगे बच्चों। तो आप जानते ही हैं, पहला हमारा उर्दू ज़ुबानदानी है, और दूसरा है कन्नड़ा ज़ुबानदानी है, और तीसरा है अंग्रेज़ी ज़ुबानदानी। यानी फर्स्ट लैंग्वेज हमारा उर्दू रहेगा, सेकेंड लैंग्वेज हमारा कन्नड़ा रहेगा, और थर्ड लैंग्वेज हमारा अंग्रेज़ी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। और उसी के साथ साथ कोर मज़ामिन सब्जेक्ट ये 3 होंगे, जिसमें पहला आता है जनरल हिसाब आता है, और दूसरा आता है जनरल साइंस आता है, और तीसरा आता है समाजी साइंस आता है। और इसी के साथ साथ प्यारे तलबा व तालिबात, हम और 2 मज़ामिन को पढ़ना ज़रूरी है। वो है एक जिस्मानी तालीम है और एक SUPW यानी ड्राइंग और क्राफ्ट वृत्ति शिक्षण यानी SUPW ड्राइंग और क्राफ्ट को भी हमें पढ़ना है। तो प्यारे तलबा व तालिबात, कुल हमारे जमात में हश्तुम हो या निहम हो या दहम जमात में कुल 8 मज़ामिन होंगे। फर्स्ट उर्दू होगा, सेकेंड कन्नड़ा होगा, थर्ड वन इंग्लिश होगा, और उसके बाद हिसाब यानी जनरल हिसाब होगा, और उसी के साथ साथ जनरल साइंस होगा, और साथ ही साथ समाजी साइंस होगा। और 2 मज़ामिन हमारे हैं, वो जिस्मानी तालीम है और एक SUPW ड्राइंग और क्राफ्ट। तो प्यारे तलबा व तालिबात, ये है हमारे 8वीं जमात के हमारे 8वीं 9वीं 10वीं जमात में पढ़ने के कुल 8 मज़ामिन हैं। अब हम समाजी साइंस का मफ़हूम और इसके मानी और हमारी इस दरसी किताब में 8वीं जमात की क्यों ना हो या 9वीं जमात की क्यों ना हो या 10वीं जमात की क्यों ना हो, तो प्यारे बच्चों, ये हमारी दरसी किताब समाजी साइंस में कुल 6 हिस्से हैं। आपको पहले हमें बताया था गुज़िश्ता साल, वो 6 हिस्से कौन से हैं। मतलब नंबर 1 आता है, पहला तारीख़ आता है, और दूसरा आता है सियासियात आता है, और तीसरा आता है समाजियात आता है, और चौथा आता है जोग्राफिया आता है, और 5वां आता है मौशियात आता है, और उसके बाद तिजारती तालीमात। तो हमारी दरसी किताब समाजी साइंस के 6 हिस्से हैं बच्चों। तो पहला आता है तारीख़ को हम अंग्रेज़ी में हिस्ट्री कहते हैं, और उसे कन्नड़ा में इतिहास कहते हैं, आपको मालूम ही है। और साथ ही साथ दूसरा आता है सियासियात, हम सियासियात को अंग्रेज़ी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और उसे कन्नड़ा में राज्य शास्त्र कहते हैं। और प्यारे बच्चों, तीसरा हिस्सा आता है समाजियात को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, और साथ ही साथ उसे कन्नड़ा में उसको हम समाज शास्त्र कहते हैं। और उसके बाद चौथा हिस्सा आता है जोग्राफिया आता है। तो प्यारे बच्चों, जोग्राफिया को अंग्रेज़ी में जियोग्राफी कहते हैं, और साथ ही साथ उसको कन्नड़ा में उसे भूगोल शास्त्र कहा जाता है, आपको मालूम ही है। और साथ ही साथ 5वां हिस्सा आता है मुआशियात आता है। मुआशियात को हम अंग्रेज़ी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, और उसको कन्नड़ में उसे अर्थशास्त्र कहते हैं प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ 6वां और आखिरी हिस्सा है, वो है तिजारती तालीमात, जिसको हम अंग्रेज़ी में
बिजनेस स्टडी कहते हैं, और साथ ही साथ उसको कन्नड़ा में से व्यापार या व्यवहार अध्ययन के नाम से उसे याद किया जाता है। और सबसे पहले हमें 6 पार्ट्स, 6 हिस्से, तारीख, सियासियात, समाजियात, जोग्राफिया, माशियात और तिजारती तालीम का मफहूम क्या है, इसकी मानी क्या है, पहले इसे जानना पड़ेगा हमें। ये हमारी बुनियाद है। पहले आप हश्त में पढ़े हैं और नीहा में पढ़े हैं, अब भी आपको पढ़ना पड़ेगा दहम जमात में। तो फर्स्ट आता है तारीख। तारीख किसे कहते हैं, तारीख की मानी क्या है? तो प्यारे बच्चों, तारीख को यूनानी जुबान के लफ्ज़ हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया की मानी है तहकीक करना। हिस्टोरिया को अंग्रेजी में से हिस्ट्री कहा गया है और उसे में उर्दू में से में तारीख कहते हैं बच्चों। तो तारीख को लैटिन वर्ड यूनानी जुबान के लफ्ज़ हिस्टोरिया से माखूज किया गया है। हिस्टोरिया की मानी है तहकीक करना, खोज निकालना, ढूंढ निकालना, तहकीक करना। तो क्या तहकीक करना? तो इसमें आता है माजी में गुजरे हुए इंसान के कारनुमाइयों के मुतल्लक़ मालूमात हासिल करना या इल्म हासिल करने को ही तारीख कहा जाता है। तो प्यारी तलबा और तालिबात, तारीख की मानी, तारीख किसे कहते हैं, तारीख का मफहूम, तारीख को यूनानी जुबान के लफ्ज़ हिस्टोरिया से माखूज किया गया है। हिस्टोरिया के मानी तहकीक के हैं, यानी माजी में गुजरे हुए इंसान के कारनुमाइयों के मुतल्लक़ पढ़ाई करना या तहकीक करना या मालूमात हासिल करना या इल्म हासिल करने को ही तारीख कहते हैं। मिसाल, माजी में क्या गुजरे हुए हालात, फॉर एग्जांपल इंसान के समाजी हालात है और साथ ही साथ इंसान के मुआशी हालात है, इंसान के सकाफती हालात है, इंसान के रस्म व रिवाज है, तौर तरीक़े हैं, रहन सहन है, फ़न है, फ़न तामीरात, इल्म व अदब है, कुतबात है और जंगी वगैरह के मुतल्लक़ इल्म हासिल करने को ही तारीख़ कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, और एक बार थोड़ा ध्यान दें, तारीख़ को यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ हिस्टोरिया से माखूज किया गया है। हिस्टोरिया के मानी तहकीक के हैं, यानी माजी में गुजरे हुए इंसान के कारनुमाइयों के मुतल्लक़ इल्म हासिल करने को ही तारीख़ कहते हैं। मिसालें, इंसान के समाजी हालात, इंसान के मुआशी हालात, इंसान के सकाफती हालात, रस्म व रिवाज, तौर तरीक़े, रहन सहन, फ़न और फ़न तामीरात, इल्म व अदब, कुतबात और जंगें वगैरह के मुतल्लक़ इल्म हासिल करने को, पढ़ाई करने को ही तारीख़ कहते हैं प्यारे बच्चों। और उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है सियासियात। तो सियासियात का मफहूम, सियासियात की मानी आपको जानना है बच्चों। तो इंसान की सियासी सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी साइंस इल्म में से एक मजमून सियासी साइंस है। इंसान की सियासी सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी साइंस इल्म में से एक मजमून सियासी साइंस है। रियासत और हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करती है सियासी साइंस, और सियासी इदारे की तश्कील, असलियत और रियासत की बनावट की जानकारी भी हमें सियासियात में ही हासिल होता है। और साथ ही साथ मशहूर फिलासफर प्लेटो, जानते हैं आप प्लेटो का नाम? तो ये सियासियात के मशहूर फिलासफर प्लेटो के एक शागिर्द थे, उनका नाम अरस्तु है। अरस्तु को सियासी साइंस की तरक्की और उसकी वसअत की नायाब देन की बदौलत अरस्तु को बाबाए सियासी साइंस कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे किताबें लिखे हैं अरस्तु ने। ये प्लेटो के शागिर्द, आप जानते ही हैं, प्लेटो के शागिर्द अरस्तु माशियात में
सियासियात में बहुत ही मशहूर थे। सियासी साइंस में उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनके ज़रिए बहुत सारे मालूमात भी क्या हैं लिखे हैं, बताए हैं। तो मशहूर फिलासफर प्लेटो के शागिर्द अरस्तु को सियासी साइंस की तरक्की और उसकी वसअत की नायाब देन की बदौलत अरस्तु को बाबाए सियासियात या बाबाए सियासी साइंस के नाम से उनको माना गया है, याद किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने दी पॉलिटिक्स नामिक किताब लिखी, उन्होंने मशहूर किताब जिसका नाम है दी पॉलिटिक्स। दी पॉलिटिक्स नामी अपनी मशहूर किताब में सियासी साइंस का मखौला हमारे सामने रखा है बच्चों। इस मशहूर किताब में अरस्तु ने रियासत की असलियत और तरक्की पर बहस से मालूमात फराहम की है। इसीलिए हम सियासियात को यानी सियासी साइंस मजमून को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों। और आगे आता है तीसरा हिस्सा आता है समाजियात, समाजी साइंस। समाजियात से क्या मुराद है, इसके मानी क्या हैं? तो दुनिया के तमाम मखलूक़ात में इंसान पूरे होश व हवस के साथ जीता है। पहले पढ़ाया था आपको मैं निहम जमात में, रस्तुम जमात में। तो दुनिया के तमाम मखलूक़ात में इंसान पूरे होश व हवस के साथ जीता है, अपनी ज़िंदगी के रहन सहन के बारे में भी सोचता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। लेकिन इंसान एक दूसरे के साथ भेदभाव क्यों करता है? उनमें ऊंच नीच क्यों पाई गई है? लोगों को और ग्रोहों में आपस में एकजुट होने में कौन सी ताकत का होना ज़रूरी है? समाज हमेशा क्यों बदलाव लाता है? क्या इस बदलाव से कामयाबी मिल सकती है? ऐसे सवालात का हल ढूंढने के लिए इंसानी समाज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इंसानी समाज के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मालूमात हासिल करने के लिए माजी में सियासी साइंस की तरक्की से कोशिश की गई है, और समाज के बगैर इंसान नहीं और इंसान के बगैर समाज नहीं। प्यारे बच्चों, समाजी साइंस का अहम मफहूम क्या बताता है बोले तो इंसान के बगैर समाज नहीं और बगैर इंसान के समाज नहीं। तो सियासी तरक्की से कोशिश की जा रही है कि समाज के बगैर इंसान नहीं और इंसान के बगैर समाज नहीं। इस वजह से बहुत सारे फिलासफर, बहुत सारे माहिर उमरानियात का कहना है कि इंसान से समाज की तख्लीक होती है, इंसान से ही समाज की तख्लीक होती है और समाज से इंसान की तरक्की होती है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए माहिर उमरानियात, बड़े बड़े फिलासफर, माहिर समाजियात, साइंसदान या माहिर उमरानियात का कहना है कि इस उलूम के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है, समाजियात हो या समाजी साइंस। तो प्यारे बच्चों, आगे हिस्सा आता है हमारा जोग्राफी आता है। इसके बारे में हम पिछले गुज़िश्ता साल हम पढ़ चुके थे, हम निहम जमात में, और उससे पहले हश्तु में भी हम पढ़ चुके थे। तो जोग्राफिया का मफहूम क्या है, इसकी मानी क्या है? तो प्यारे बच्चों, जोग्राफिया को यूनानी जुबान के दो लफ्ज़ जियो और ग्राफी से माखूज किया गया है। ये भी क्या है, यूनानी जुबान का लफ्ज़ जोग्राफी, इसके दो हिस्से हैं, दो लफ्ज़, दो अल्फाज हैं। यानी जोग्राफिया को यूनानी जुबान के दो अल्फाज जियो और ग्राफी से माखूज किया गया है। तो प्यारे तलबा व तालिबात, अब यहाँ जियो के मानी अलग है, ग्राफी के मानी अलग है। तो जियो के मानी क्या? जियो के मानी है अर्थ। जियो को अंग्रेजी में अर्थ कहा जाता है और उसे उर्दू में ज़मीन कहते हैं। और ग्राफी के मानी है स्टडी, यानी पढ़ाई करना उर्दू में, जियोग्राफी। समझ रहा आपको? यानी जोग्राफिया को यूनानी जुबान के
दो अल्फाज जियो और ग्राफी से माखूज किया गया है। जियो के मानी अर्थ है और ग्राफी के मानी स्टडी है, यानी ज़मीन पर, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में और खुला या कहकशा में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसके मुतल्लक़ इल्म हासिल करने को ही जोग्राफिया कहते हैं। और एक बार प्यारे तलबा और तालिबात, जोग्राफिया को यूनानी ज़ुबान के दो अल्फाज जियो और ग्राफी से लिया गया है। जियो और ग्राफी से माखूज किया गया है। जियो के मानी अर्थ है, जिसे अंग्रेजी में उर्दू में से ज़मीन कहते हैं, और साथ ही साथ ग्राफी को अंग्रेजी में स्टडी कहते हैं, उसे उर्दू में पढ़ाई करना है, यानी ज़मीन पर, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में और कहकशा में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनके मुतल्लक़ इल्म हासिल करने को ही जोग्राफिया कहते हैं। मिसालें, ज़मीन पर आप जानती हैं, ज़मीन पर बड़े बड़े बर आज़म हैं, 7 बर आज़म है मालूम आपको, और बहर आज़म हैं, जंगलात है, रेगिस्तान हैं, चट्टानें हैं, झीलें हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, आब हवा, मिट्टी और हैवानात वगैरह के मुतल्लक़ इल्म हासिल करने को ही जोग्राफिया कहते हैं। अब यहाँ पर ज़मीन पर 7 बर आज़म आप जानते हैं। बर आज़म एशिया है, बर आज़म यूरोप है, बर आज़म अफ्रीका है, बर आज़म शुमाली अमेरिका है, बर आज़म जनूबी अमेरिका है, बर आज़म ऑस्ट्रेलिया है, बर आज़म अंटार्कटिका है। ये कुल 7 बर आज़म हैं, और साथ ही साथ इस कायनात पर, इस ज़मीन पर कुल 5 बहर आज़म भी है। अब यहाँ पर बहर के मानी पानी, आज़म मानी बड़ा, पानी के या नमकीन पानी के सबसे बड़े हिस्से को बहर आज़म कहते हैं। तो मतलब कुल 5 बहर आज़म हैं, आप जानते ही हैं। वो है, सबसे बड़ा बहर आज़म है वो बहर अलकाहिल है, और दूसरा बड़ा बहर आज़म है वो बहर ओकियानूस है, और तीसरा बड़ा बहर आज़म है बहर हिंद है, और चौथा बड़ा बहर आज़म है बहर मुंजमिद शुमाली है, और 5वां बड़ा बहर आज़म है वो बहर मुंजमिद जुनूबी है। तो प्यारे बच्चों, ज़मीन पर बर आज़म, बहर आज़म, जंगलात, रेगिस्तान, चट्टानें, झीलें, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, आब हवा, मिट्टी, नबातात और हैवानात वगैरह के मुतल्लिक़ भी हम इस जोग्राफिया के मज़मून में ही पढ़ सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वहाँ पर मादनियात है, चट्टानें हैं, पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है। तो मतलब ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में भी जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके मुतल्लक़ इल्म हासिल करना, पढ़ाई करना, ये भी जोग्राफिया का ही एक अहम मौजू है। और प्यारे बच्चों, ज़मीन के ऊपर खुला है, जानते हैं आप, खुला है, कहकशा है, सूरज है, सितारे है, चाँद है, और निज़ाम शमसी के 9 से 8 सैयारे जानते हैं आप। निज़ाम शमसी के 8 सैयारे, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह, ये ज़मीन के 8 सैयारों के मुतल्लक़, निज़ाम शमसी के 8 सैयारों के मुतल्लक़ भी क्या है, इल्म हासिल करना ही भी क्या है, ये जोग्राफिया का एक अहम मौजू है। तो प्यारे बच्चों, और एक बार सुनाता हूँ मैं। जोग्राफिया को यूनानी ज़ुबान की 2 अल्फाज जियो और ग्राफी से लिया गया है। जियो के मानी अर्थ है और ग्राफी के मानी स्टडी हैं, यानी ज़मीन पर, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में और खुला यानी कहकशा वगैरह में भी जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनके मुतल्लक़ इल्म हासिल करने को ही जोग्राफिया कहते हैं। और ज़मीन पर बहर आज़म हैं, बर आज़म हैं, जंगलात है, रेगिस्तान हैं, चट्टानें हैं, झीलें हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, आब व हवा, मिट्टी, नबातात
वगैरह के मुतल्लक़ भी हम जोग्राफिया ही में हमें पढ़ सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में मादनियात है, चट्टानें हैं, पेट्रोलियम हैं और चट्टानों की बहुत सारी किस्में हैं, वो भी हम जोग्राफिया के मजमून में ही पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये ज़मीन के ऊपर खुला यानी कहकशा में सूरज, चाँद, सितारे है और निज़ाम शमसी के 8 सैयारों के मुतल्लक़ तफसील से मालूमात हम ये जोग्राफिया के मौजू ही में हासिल कर सकते हैं। और आगे आता है 5वां हिस्सा आता है मुआशियात। तो मुआशियात की मानी क्या है? तो हुसूल ज़र और हुसूल तकसीम के इल्म व अमल को ही माशियात कहते हैं। तो प्यारे तलबा व तलिबात, हुसूल ज़र की मानी क्या है? हुसूल के मानी हासिल करना है और ज़र के मानी दौलत, पैसा, रुपया, धन। तो पैसा या दौलत या कैपिटल या मनी कैसा हासिल करते हैं और हासिल शुदा दौलत को या रुपयों को या कैपिटल को या मनी को कैसा तकसीम करते हैं बचा बचा कर, वैसे इल्म व अमल को ही माशियात कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। हुसूल ज़र, ज़र कैसे हासिल होता है और हासिल शुदा ज़र या दौलत को किस तरह से हम बचत करते हुए हम तकसीम करते हैं, वैसे इल्म व अमल को ही माशियात कहते हैं। तो प्यारे तलबा व तालिबात, हुसूल ज़र और हुसूल तकसीम के इल्म व अमल को ही माशियात कहते हैं। और यहाँ पर और एक माशियात की बहुत ही मशहूर जिसे बाबाए माशियात कहते हैं, उनका नाम है आदम स्मिथ। उनका एक कौल है, उनका एक डेफिनेशन है। वो क्या बताते हैं बोले तो बाबाए माशियात के मुताबिक, बाबाए माशियात आदम स्मिथ के मुताबिक दौलत का मुतालिया करना ही माशियात कहलाता है। कौन बताए? बाबाए माशियात आदम स्मिथ। उनका कहना क्या है बोले तो उनका डेफिनेशन क्या है? बाबाए माशियात आदम स्मिथ के मुताबिक दौलत का मुतालिया, टोटल दौलत कहाँ से आई, कैसे आई, कब आई, क्यों आई, उसे कैसा खर्च करना, उसे कैसा बचाना, उसे कैसा इस्तेमाल करना, टोटल मुकम्मल दौलत का मुतालिया करने को ही माशियात कहते हैं। कौन बताए? आदम स्मिथ। ये फादर ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। यानी बाबाए माशियात आदम स्मिथ के मुताबिक दौलत का मुतालिया करना ही माशियात कहलाता है। और एक बहुत ही मशहूर माहिर माशियात के, उनका नाम है रॉबिन्सन। उनका कौल, उनका डेफिनेशन, माहिर माशियात रॉबिन्सन के मुताबिक इंसान अपनी एहतियाजात यानी इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में जो जद्दोजहद करता है उसी को माशियात कहते हैं। कौन बताए? रॉबिन्सन। ये बहुत ही मशहूर माशियात के माहिर माशियात रॉबिन्सन का कहना क्या है बोले तो इंसान हमारी ख्वाहिशात, अपनी एहतियाजात को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, रोज़ी कमाना, कोई काम करना, कोई मेहनत करना, कोई बिजनेस करना, कोई कारोबार करना, किसके लिए? अपने घर गृहस्थी के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेन क्या उसे कुछ ना कुछ उसे काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, रोज़ी करना पड़ता है, कारोबार करना पड़ता है। तो मतलब माहिर माशियात के मुताबिक, माहिर माशियात रॉबिन्सन के मुताबिक इंसान अपने एहतियाजात यानी ख्वाहिशात, इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में जो जद्दोजहद करता है उसी को माशियात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, और इसमें एक आखिरी हिस्सा आता है, वो है तिजारती तालीमात का हिस्सा आता है, वो 6वां हिस्सा आता है। तो समाजी साइंस के इस हिस्से में हम तिजारती तालीमात के बुनियादी तस्वुरात को जानेंगे।
معاشی سرگرمیاں सारी تجارتی سرگرمیاں کی بنیاد ہوتی ہے اور ہم معاشی سرگرمیوں اور اس کے تصورات پر بحث کر سکتے ہیں. جیسے کہ لفظ تجارت ہمیشہ سرگرمیوں یعنی بیزی BUSY لفظ تجارت ہمیشہ سرگرمیوں یعنی بیزی کے لفظ سے لیا گیا ہے. بیزی نامی لفظ سے ماخوذ کیا گیا ہے. کس کو؟ تجارت کو. معلوم پڑ رہا ہوں. لفظ تجارت ہمیشہ سرگرمیوں کا بیزی نامی لفظ سے اسے ماخوذ کیا گیا ہے. ہر ایک انسان کے لیے غذا، کپڑا اور مکان یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، غذا، کپڑا اور رہائش کا ہونا بے حد ضروری ہے. یہ بنیادی ہماری ضروریات ہے پیارے بچوں. ہم اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے گھریلو استعمال کی اشیاء میں بھی ہمیں خریدتے ہیں، وہ بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے پیارے بچوں. انہیں ہم تاجروں سے حاصل کرتے ہیں. یہ خردہ فروش، تھوک فروشوں سے یا صنعت کاروں سے یہ اشیاء حاصل کرتے ہیں. ان تمام کی مختلف سرگرمیوں کو ہی تجارتی تعلیمات کہتے ہیں، تجارت کہتے ہیں اور انہیں تاجر کہا جاتا ہے. تجارت ایک معاشی سرگرمی ہے جو اشیاء کی پیداوار اور اشیاء کی تقسیم کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے انسانی ضروریات کو پورا کرتی ہے. یہ ہے تجارتی تعلیمات کا مفہوم ہے. تو پیارے بچوں، یہ آج ہم سماجی سائنس کے متعلق چند اہم معلومات آج میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ 10 جماعت میں تاریخ کا پہلا چیپٹر جس کا نام ہے ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے واٹس ایپ میں بھیجا تھا. واٹس ایپ گروپ میں آپ کو روانہ کیا تھا پیارے بچوں، اور اس کے نوٹس بھی آپ کو میں دیا تھا ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد کے متعلق. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور میں اس کے بعد کل آپ کو جغرافیہ کا پہلا چیپٹر لے کر آپ کے سامنے مخاطب ہوں گا. اس جغرافیہ کا پہلا چیپٹر کا نام ہے، پہلے باب کا نام ہے ہندوستان ہمارا مادر وطن، انڈیا از اور مدر لینڈ ہے. میں اس کو آئندہ آپ کے سامنے سمجھاؤں گا، آئندہ آپ سے مخاطب ہوں گا. پیارے بچوں، ہمارے جو گروپ میں 10ویں جماعت کا جو واٹس ایپ گروپ ہے ہمارے SAK انگلش اردو اسکول کا، اس میں آپ کو بہت سارے معلومات بھی آپ کو ہمیں بھیجتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے لیسن بھی بھیجتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ برج کورس یہ DD چندن واہنی کے ذریعے بھی آپ کو ہمیں نیوز بھیجے گئے تھے. چندن نیوز کے بارے میں، چندن کے متعلق آپ کو سمجھایا گیا تھا، وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اسی لیے پیارے بچوں، آپ ہمیشہ یہ DD چندن واہنی کو دیکھتے رہیں. اور ہمارا جو SSLC ہو یا 9ویں جماعت کا ہو یا 8ویں جماعت کے جو گروپس ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ، اس میں آپ کو ہم امپورٹنٹ چیپٹرز کے متعلق آپ کے گروپ کو مہیا کریں گے. آپ ہمیشہ اس کو دیکھتے رہیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں. آپ کو جو بھی ڈیفیکلٹیز ہو وہ ہم سے فون کر کے بول سکتے ہیں. آپ کے تمام مسائل کا ہم حل کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.